और मेरे पीछे आपको दिख रही है जॉर्डन की राजधानी अमान शहर, जो कि कई पहाड़ों पे बसा हुआ है। और वो जो पीछे आपको एम्फी थिएटर दिख रहा है, ये 1500-2000 साल पहले रोमन्स ने बनवाया था। प्राइमरली इस्लामिक कंट्री है और यहाँ पे कहते हैं कि रीजन के अंदर जो विमेन का लिटरेसी रेट है वो तकरीबन 93% के आसपास है, मगर 13% ही सिर्फ एक्टिव वर्कफोर्स में इन्वॉल्व होती हैं। तो उसके पीछे क्या रीज़न है वो बात करते हैं और ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि इतनी बड़ी इस्लामिक कंट्री में जिसके अंदर क्रिश्चियनिटी की भी बड़ी छाप है, तो उसका यहाँ पे क्या सिस्टम चलता है। और साथ ही इस वीडियो के अंदर देखते हैं ये हिस्टोरिक एरिया जिसको हम बोलते हैं सिटाडेल, जो कि बहुत ही पुरानी और सिग्निफिकेंट हिस्टोरिक चीज़ें जो कि पूरी दुनिया में आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगी, यहाँ पड़ी हुई हैं 7-8 हज़ार साल पुरानी। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो आज की वीडियो की ज़रा शुरुआत करिए। और यहीं सिटाडेल पे एक कैफ़े बना हुआ है जिसके अंदर सैंड्रा वेट कर रही हैं एक अरबिक क्रिश्चियन लड़की के साथ, जिनसे हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे। और उसके बाद मैं आपको ये ऐतिहासिक एरिया दिखाता हूँ। अमान शहर के सबसे खूबसूरत व्यूज़ यहाँ से हैं और बहुत ही सुंदर, जिसे कहते हैं ना, एरिया है। और अब हम सिटाडेल आए हैं और यहाँ पे एक बड़ा ज़बरदस्त कैफ़े है। सो वी आर मीटिंग हाला हियर। हाला, डिड आई प्रोनाउंस योर नेम करेक्टली? हाला, एंड शी इज़ अ इंस्टाग्रामर हियर, रनिंग हर ओन प्रोफाइल। तो इनसे ही कुछ सवाल पूछते हैं। Is this potato? Yes. Cheese. Spicy potato. यार उससे थोड़ा खाना भी मंगा लेना, गपशप लगती रहेगी, साथ साथ खाते रहेंगे। ये चीज़ है ये, और ये तो मेरी फेवरेट चीज़ है, आपको पता ही है भाई, यहाँ पे टमाटर का तड़का। मैम, कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? Yes, of course. My name is Hala. I'm 24 years old. वाओ। Yeah, I look younger. Older. Okay. I was born and raised in Amman, the capital of Jordan. I studied logistic sciences in university, but I'm pursuing a career in as being a content creator on Instagram because that's my passion. Wow. And I'm pursuing it. Lovely. Hala, so one quick question. Like, as a woman, being an outgoing woman, presenting yourself out on social media, do you find it difficult or was it challenging to do this in a country or a society that is largely considered conservative? Okay, yes, it definitely has. But what helped me a lot was the support of my parents, and I have been afraid of being judged, but I've worked on that a lot. I've worked on my mentality a lot, because people are going to talk either way. Whatever you post, whatever you share, Exactly. many people will disagree with your posts, with what you share, but as long as what you're doing, what you love, just keep on going and keep on posting and just don't care about what others say. एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, we don't, is it not common to have like spoons given? No, whenever you eat this food, you just use bread Yeah? and you cut a piece of it and you dip it and you just eat it. Okay, no spoons. I can just show you how. Okay. If you want. Yeah, oh, we eat like that in India all the time. Yeah, you eat like this. Yeah, Then you in know India how. Nice. So Hala, when you go to school, did you go to a co-ed school or a girls only? No, it was girls and boys school. Okay. Now, how many girls and how many boys in your class? They're actually almost the same number. There wasn't that much difference between the number of boys or the number of girls. It was Okay. almost equal. And total number of students in one class? Between 24 to 27. 24 to 27 students in one class. Yeah. Okay. Now, among your female friends, how many of you think actually work after education and how many didn't work? Okay, among my female friends, Yeah. my circle, Yeah. they all work. They all work? Yes. Wow. And on an average? On an average, wider circle. Yeah. If you want to take it onto a wider circle upon the entire Jordanian community, Yeah. I think that the average goes more below that, Okay. and that is due to maybe pressure on females to get married. Oh, and- same happens in our country also. In India, like, as soon as you are 22, 23,
people start telling you it's your age to get married. If you don't get married in time, you probably might not. You will have difficulty having kids Yes, and it's so on. almost the same issue here. गजब व्यूज देखते हुए जा रहे हैं हम सिटाडेल की तरफ। यहाँ का सबसे हिस्टोरिक एरिया रोमन्स का बनाया हुआ। इतनी हवा चल रही है ना देखने ना बात करने लायक। Okay, Hala, so now that wind is not a problem. Yeah. Is it like, common for women to live independently? Like, do you live with your family first of all? Yes, I live with my parents. Okay, any of your friends who live independently, like females? My female friends, no, none No? of them. So, like, they live with the parents first and then after that you get married and with the husband afterwards. Yes, So that's correct. it's not common. It's not. Okay, all right, one thing. And second thing I wanted to ask was like about relationships before marriage. Like if you are dating, is it common for people to share about their relationships with their parents or in society in general, for women particularly? Yes, no, it's not common. Okay. The women mostly keep it a secret. Let's move. Okay. Women usually keep it a secret until marriage, while males they tend to speak more openly about being in a relationship. और इस जगह पे आई हैं तो मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे चाहे अरबिक कंट्री है, क्रिश्चियन इन्फ्लुएंस काफ़ी अच्छा खासा ज़्यादा रहा है क्योंकि जीसस तो बैप्टाइज ही यहाँ पे हुए थे, प्लस रोमन्स और बिजेंटीन एम्पायर ने भी यहाँ पे रूल करा है। ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो बिल्डिंग है, एक टाइम पे चर्च होती थी, तब ऑटोमन्स टर्क्स यहाँ पे आए तो उन्होंने इसको अपने पैलेस में कन्वर्ट कर लिया। जैसे कई सारी बिल्डिंग्स जो है बाद में कन्वर्ट कर दी गई थी मॉस्क्स के अंदर भी, जैसे टर्की में भी है। बट यहाँ पे मैं अभी बात अगेन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे क्रिश्चियन कम्युनिटी भी काफ़ी है एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट Hala belongs to Jordanian Christian community, right? Yes. So did you like study in a city school like a Muslim school or a regular public school or a Christian school? Yeah, a Christian school. I also studied in a Christian school, Yeah, by the really? way. Yeah. Okay, and in your school, like, was it like all Christians? No, No? it was both. Yeah, it's like but the Jordanian community consists of Muslims and Christians, Yes. and the school consisted of Muslim students and Christian students. Oh, that's nice because we like majority of the students in my school were Hindus and we all studied in like a Christian school. really? Yeah. So there's a peaceful coexistence. How about here? Yes, it's. Yeah. There is also a peaceful coexistence, and Nice. actually, the Muslim students in my class were more than the Christian students. Wow, that's interesting. Yeah. Oh, okay. People generally don't care what religion you are from in Jordan. They Okay. usually just ask you where are you from, where did you come from, not what is your religion. Ah, okay. That's nice. That's Yeah. really nice. ये दिखा ना, ये जब यहाँ से गटर निकलता है जी पानी का सीधा। पूरी तरह हवा चल रही है। सॉरी जी, मैं आपको अच्छे से दिखा नहीं पा रहा क्योंकि हम ना खड़े हो पा रहे हैं। मेरा तो गिम्बल ही उड़ा जा रहा है, कोई सिनेमैटिक शूटिंग भी नहीं कर पा रहा, जबकि इतनी अच्छी जगह है। बट अभी फिलहाल तो यही है। ये जो हाथ बचा है ना, ये मिला तो उनको पता लगा कि ये हरकुलिस का टेम्पल था। और ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये 8500 तकरीबन 9000 साल पुरानी मूर्ति है और कहा जाता है शायद वर्ल्ड की पहली अभी तक जो मिली है इनको फेस डिपिक्टिंग मूर्ति है। 8500 साल। दिस इज लाइक 6500 बिफोर क्राइस्ट।
इसमें से बंदे निकलते हैं जी 1200 BC, ओए होए 3500 साल पुराने। कल जी हवा थोड़ी तेज चल रही थी तो इसलिए मैं ढंग से आपको दिखा नहीं पाया, मगर आपको ये रूइंस और रिमेन्स देख के थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा कि ये जगह जो है 1500-1600 BCE यानी तकरीबन 3500 साल के आसपास पुरानी है। और कहते हैं कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंटिन्यूसली इनहैबिटेड कम्युनिटी है। आठ 8,000 साल पुराने स्कल है और कहते हैं कि ये जो ठुड्डे बजे हुए ना इसमें, ये इसलिए है कि सारी बुरी स्पिरिट इससे बाहर निकल जाए। लोग इनको प्रिजर्व करके अपने पूर्वजों की फिर पूजा किया करते थे। ये जो हमने देखा है ना, जोध अकबर वगैरह में लेडीज़ के बालों में खुशबू वगैरह डाल रहे होते हैं, तो ये इसके अंदर अगरबत्ती टाइप जला के फिर इससे धुआं करते थे ऐसे फैलाने के लिए घर में या बालों में, या श्रृंगार होगा एक तरीके का। लिखा हुआ है ब्रॉन्ज एज का है और अम्मान में मिला था। और ब्रॉन्ज एज या ये जो एज लिखी हुई है ना यहाँ पे, हेलेनिस्टिक, क्राइस्ट से 300 साल पहले। यानी आपका तो पता नहीं, मगर मेरे को पुरानी चीज़ें देख के ना बड़ा मज़ा आता है, एक्साइटमेंट होती है कि भाई कैसी चीज़ें हुआ करती हज़ारों साल पुरानी। आजकल तो मेरे को ये समझ नहीं आती कि 10-15 साल पहले लोग मोबाइल के बिना ज़िंदगी कैसे काटते थे। ये तो फिर पता नहीं कब की बात हो रही है। और ये जी इस्लामिक एज की जिसे कहते हैं ना, बजूका मान लो आप, तकरीबन कोई 1500 AD की है, वो ही 700 साल पुरानी। अब रोमन्स जो हैं वो क्राइस्ट से थोड़ी पहले थे और थोड़ी उनके बाद भी वो देवी देवताओं वाला कल्चर हुआ करता था। बिजेंटीन एम्पायर भी अलग तरीके की चीज़ थी, क्रिश्चियनिटी के आसपास मान लीजिए। उससे पहले पेगन करके यहाँ पे रिलीजन हुआ करता था। इस्लाम तो फिर है ही है, बट आप ये लगा लीजिए क्रिश्चियनिटी की अगर यहाँ पे बात करें 1930 के आसपास कहते हैं कि यहाँ पे अराउंड 20% पॉपुलेशन जो है वो क्रिश्चियन थी। आज की डेट में सिर्फ 4% रह गए। 2 एब्सोल्यूट नंबर इंक्रीज़ हो गए हैं, बट उसकी मेन वजह ये है कि इस्लामिक पॉपुलेशन की ग्रोथ ज़्यादा तेज़ी से हुई है। क्रिश्चियन पॉपुलेशन काफ़ी आजू बाजू की कंट्रीज में माइग्रेट कर गई, और यहाँ पे जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, वॉर वगैरह, तो उसकी वजह से काफ़ी और इस्लामिक कंट्रीज़ के लोगों का यहाँ पे जब इन्फ्लक्स हुआ तो उससे पॉपुलेशन बढ़ गई। मगर फिर भी यहाँ पे बहुत अच्छे से रहने वाले 2.5 लाख क्रिश्चियन, एथनिकली अरब क्रिश्चियंस यहाँ पे अभी भी मौजूद हैं। और इंडियन कम्युनिटी का एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मेरे को एक भी टूरिस्ट अभी यहाँ पे घूमता हुआ नज़र ही नहीं आया कोई, जिससे मैं कोई बात कर लूँ। बट यहाँ पे मेरे को अभी तक इंडियन नज़र ही नहीं आया। इवन दो यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं विच आर वेरी पॉपुलर, प्रॉब्लम वहाँ पे मिलते। मैंने एक्चुअली टूरिस्टी जगहों पर ही ज़्यादा रहा हूँ, तो इसीलिए मुलाकात कम हो पाई, बट होपफुली आगे